Congress is now seeking the intervention of External Affairs Minister S. Jaishankar with regards to the international students' attack that took place in Gujarat. International students were attacked over offering namaz in a university in Ahmedabad. And now Congress has written a letter to the External Affairs Minister seeking his intervention in this case. The Gujarat Home Minister has chaired a crucial meeting. The police at the moment is interrogating the students who stay in the adjoining rooms. An investigation is underway. My colleague Ashutosh is now joining me on the story. Ashutosh, the Congress now knocking on the doors of the External Affairs Minister saying that this is a very serious attack and it should be looked into and his intervention is needed because foreign students are involved. Absolutely, because it is involvement of foreign nationals and the way they have been attacked. Clearly, this requires the attention from the highest authority, and that's exactly why the NSUI has written a letter to Foreign Minister. While we see some actions are being seen that Gujarat government, state police are being taken, but clearly the kind of incident that unfolded and those videos are doing around, so clearly that also shows certain lapses on the part of the administration and the police as well. And clearly, why it is taking so much time, why it is being delayed. Even the FIRs talks about 25 unknown people. So clearly on that, and when it comes to involvement of foreign nationals, those who are studying here, and then during this holy time of Ramzan, the way this attack has taken place. So this is also raising a serious question on the Gujarat government, Gujarat police and the local administration. But for now, the NSUI has written a letter taking intervention of foreign minister that at least there will be more and more and probably prompt a response from the state administration when the union government intervenes. Thank you, Ashutosh, for giving us all those details. The Congress now knocking on the doors of the External Affairs Minister, seeking his intervention in this case coming in from Gujarat. In this case, unidentified assailants attacked foreign students at a Gujarat university. And this took place over allegedly offering of namaz prayers being done by the foreign students inside the hostel premises. The attackers vandalized the hostel room and then resorted to sloganeering and throwing stones. A few of the students have been injured in this attack. The injured have now been admitted to a hospital. The police have in fact launched an investigation in this incident. Gujarat Home Minister is also chairing a high-level meeting to discuss the attack on the students. Meanwhile, AIMIM chief Asaduddin Owaisi has launched a scathing attack at the ruling Bharatiya Janata Party government over the attack. He is now questioning Home Minister Amit Shah to intervene and to send a strong message against the attack. He also said that these kind of attacks are only damaging India's international reputation. हम लोग इधर तरावे पर आता 10:30 बजे तक आसपास हो जाएगा, तो एक बार 3 लोग आया, वो बोला इधर का क्या मसला चल रहा है, वो हम लोग बोला नमाज पढ़ रहा है। वो एक बार दूसरा 15 लोग आया, आपको कौन अलाउ दिया ये गुजरात यूनिवर्सिटी इधर को नमाज पढ़ेंगे। वो हम लोग को बोला ये तो रूल है, क्योंकि इधर का फॉरेनर लोग ज़्यादा है और मस्जिद भी बहुत दूर है, तो इसलिए हम लोग इधर नमाज पढ़ाते हैं। तो एक बार वो 200 बहुत लोग ज़्यादा होगा, हम लोग को वो स्टूडेंट की मारा था, तो हम लोग लड़ाई ज़्यादा होगा, हम लोग रूम से अंदर आया, वो लोग जो उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, इसे ये वाला चीज़ से मेरा रूम को वो हमारा सबके फ्रेंड का रूम टूट गया था, वो रूम के अंदर आ गया, और ये है अभी रूम का तबीयत अभी हाल ऐसा है। मैं बाहर से हूँ, बट अभी 10:30 बजे मेरा कॉल आया था कि आपका रूम से अटैक हो जाएगा। मैं अंदर आ गया, देख रहा हूँ कि सब चीज़ टूट गया। मैं पूछना है कि मतलब क्या होगा, मसला क्या है। वो बोला है कि ये लोग आएगा, इधर कुछ पॉलिटिकल है, कुछ पार्टी कुछ है, ये आएगा, बोला है कि इधर नमाज मत पढ़े मत कर। बट हम लोग कन्फ्यूज ऐसा आ रहा है कि मतलब हम लोग भी स्टूडेंट है, इधर कुछ ना पॉलिटिकल पार्टी ना कुछ दूसरा है, ऐसा अटैक करना है ये भी अच्छा है। मैं नहीं उधर, अगर हो मर हो भी गया, 4 बंदे भी इंजरी लगेगा, वो भी हॉस्पिटल अभी है, वो कुछ नाइफ भी यूज़ करना है, वो बेचारा भी नाइफ भी मारना है। और भी इधर एक कंट्री वाला नहीं है, इधर भी 30 कंट्री से ज़्यादा लोग हैं। बट मेरा ऐसे पूछना है कि मतलब सेफ्टी हम तो चाहिए, अभी नुकसान भी आएगा, सब टूट गया, मेरा भी लैपटॉप भी चुरी गया, सब लेना है। अभी मेरा ऐसा क्वेश्चन भी है गवर्नमेंट से भी थोड़ा पूछना है कि मतलब अगर गुजरात भी सेफ नहीं फॉरेन से, पहले से प्लीज़ वीज़ा मत दे दो, उसमें बोल के मत लेना है इधर। क्या अगर ऐसा चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। अब तो लोग कैसा देख, ऐसा कौन करना है।
यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है। किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रही है। माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है और स्पष्ट सूचना है कि इसमें कड़क कार्रवाई हो, न्यायिक कार्रवाई पुलिस करे। यूनिवर्सिटी की तरफ से रात को ही एफआईआर करा दी गई है और सरकार श्री ने भी और पुलिस ने भी, माननीय कमिश्नर साहब ने भी बहुत गंभीरता से इस पूरे मुद्दे को लिया है और यूनिवर्सिटी भी बहुत अर्जेंसी से इस पूरे वाकये को देख रही है और हम निश्चित ही हमें भी जो एक्शन लेने हैं, जो कार्रवाई करनी है, हम करें। दुख की बात तो ये है कि जब सब घटना बन रही थी उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई तो पुलिस की हाजिरी में भी ये जो असामाजिक तत्व जो थे वो उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ने के बजाय उनको वहां से जाने दिया। ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। हमारी मांग है कि ऐसे जो दोषी पुलिस कर्मचारी जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपनी कानूनी फर्ज नहीं निभाई, उनके सामने सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। My colleague Atul Tiwari is joining me from Ahmedabad on the story. अतुल, काफी बड़ा मामला ये हो चुका है इस समय। हमें जो समझ में आता है वो ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपने उस पे। होम मिनिस्टर जो है राज्य के, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई है, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी पता चला है? इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो एसीपी समेत क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसकी रचना भी की गई है। गृह मंत्री ने जिस प्रकार से सुबह बैठक की है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो जो अभी तक सूत्रों के माध्यम से जानकारी लगभग 1 से 2 लोगों को पकड़ा भी गया है और कुछ ही समय में पुलिस इन दोनों लोगों को मीडिया के समक्ष ला भी सकती है। और इसके अलावा जिस प्रकार से 20 से 25 लोगों के खिलाफ रायोटिंग का केस जो है वो दर्ज किया गया है, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल तहकीकात में जुटी हुई है। इसलिए लगभग 4 से 5 बजे तक पुलिस जो भी इस पूरे हमले में जिम्मेदार लोग हैं उनको लेकर सामने आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से एक वीडियो सामने भी आया है जिसमें सामने की तरफ से जब नमाज रोके जाने की बात शुरू हुई तब सामने की तरफ से नमाज अदा जो लोग कर रहे थे उसी में से एक अफगानी जो विद्यार्थी था वही उठकर सामने तमाचा मारने सामने आया। तब कहीं ना कहीं ये मामला पेचीदा भी बन रहा है कि सिर्फ नमाज रोक। That was my colleague Atul, who was giving us the details about the case. At the moment, the investigations are underway and it seems like there are 2 to 3 culprits that the investigative agencies have zeroed in on.